Hello everyone, so I hope you are doing well. So in this video, we are going to see some approaches to the essay paper. But before that, let's understand the importance of essay paper. So first of all, you all know about one thing from your teachers, mentor, and the toppers. To excel in mains, you have to focus on double O double E principle. What is this double O double E? Double O means optional paper, and double E is ethics and essay. Okay, so it consists of it consists 1,000 marks. Okay, which plays an important role in our mains preparation. So here we are talking about essay paper. So we can see here, like, essay is also important because it consists 250 marks, which is equal to the marks of one GS paper. Okay, and to if you get good marks in essay paper, so you can aspire for a good rank, and it will help us to get desired services. Okay, so and also important because it here you have to put minimum effort and getting good output. So minimum effort is equal to maximum output. It will help us to get good marks. So it is also one component of a double O double E principle, which we know that. Okay, so before discussing about the approaches, let's understand from the mark sheet of rank 1 2027 here, Anudeep Dulsetti sir. So you can see that his score in 2015 was 100, and in 2017, in which he secured All India rank 1, so he scored 155. You can see the jump of 55 marks, so which helped his rank, or which helped him to get rank 1. So you can see the importance of essay paper. So I will tell you about, like, what we are going to proceed from here. Like, I'm going to start with Anudeep Dusatti sir's copy. Basically, I'm going to read the essay paper, essay toppers copies of essay paper. So first, I'm going to start with Anudeep Dusatti sir's copy because I he's my favorite. Like, in this section, I have read many times his copies, like essay paper, when I'm going to practice the essay. When I'm going to practice for the essay, before that, I'm going to read his copies, and getting good insights. I will tell you about those things later. But before that, let's understand the approaches. Like, what are the approaches to be followed in essay paper? So first is introduction. Introduction, as we all know, that this is the common framework, that introduction, body, and conclusion. So you have to follow the same in the essay paper. So first is introduction. In introduction section, you can start your introduction with a story, with an anecdote or fact, yeah, question or quote or definitions. It means, like, story. It like, there are different approaches to start your introduction for the essay paper. So I prefer stories or anecdote. My favorite is anecdote, and third is quote. It is advisable that you have to follow. You have to prefer, like, uh, if you don't know, then you can go for these one. But if you know, like, अगर आप कहीं सेट कर पा रहे हो, then just go for story or anecdote or quote. कोट इज समथिंग दैट, लाइक, कि हर किसी को बहुत सारे कोट नहीं याद हो सकते हैं, जैसे कि आई एम वन ऑफ देम, कि मेरे को ज्यादा कोट नहीं याद हो पाते, तो इट्स ओके. बट एनेक्डोट इज माय फेवरेट. लाइक, आई यूज दिस वन इन माय मोस्ट ऑफ द एसे. ठीक है, एनेक्डोट हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, और स्टोरी हम बना सकते हैं. नॉट जस्ट कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि स्टोरी जो है वो रियल होनी चाहिए. यू कैन मेक fictional stories also. You can make any fictional stories from books like you have read earlier and all. कहीं से भी आप stories create कर सकते हो. Even the editorial can help you a lot in this section. So you can do so. Like, अब next time जब आप practice करना, तो just focus on these thing. And second is body. Body में, like, body से पहले let's see the importance in the sense कि, like, how many pages are there. Like,
ऐसे में जो बेसिक फॉर्मेट है वो है 2 ऐसे होंगे हमारे पास. वी हैव 2 essays. So each consists of 125 marks. Okay. So total 250 marks. So one essay is 250 125 marks. सो यहाँ पे आइडियल एक फॉर्मेट है. सो डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू दिस कि हाँ नहीं यही फॉलो करना है. सो लर्न मतलब लर्न करो सबसे, लेकिन फॉलो नो वन. इट मीन्स दैट द बेसिक प्रिंसिपल दैट यू हैव टू फॉलो, लाइक लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन, बी नेचुरल. अगर इससे ज्यादा भी हो रहा है इट्स ओके, बट focus more on content, like your arguments is very important. Okay. So but basic thing, अगर basic format की बात करा जाए तो अगर फॉर्मेट नहीं होगा हमारे पास तो हम लाइक डाइवर्ट हो जाएंगे. लाइक हम इंट्रोडक्शन का पार्ट ही बढ़ाते चले जा रहे हैं 3 से 4 पेज, जिससे बॉडी वाला पोर्शन कम हो जाएगा. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर लाइक इंट्रोडक्शन शुड बी 1 or 2 pages. 2 pages का होना चाहिए हमारा इंट्रोडक्शन. देन बॉडी 7 to 8 pages एंड कंक्लूजन लाइक 1 to 2 pages. ओके. एंड ऑल्सो आई विल टेल यू दैट कि हमारे पास जो है 1200 वर्ड, लाइक 1200 वर्ड्स में हमें लिखना होता है. इट मीन्स लाइक अगर एवरेज देखा जाए तो 100 वर्ड एक पेज में आ जाते हैं हमारे. तो इस हिसाब से हमें 12 पेजेस मिलते हैं. ठीक है, फॉर वन ऐसे. सो इस हिसाब से अगर हम मैक्सिमम एक्सटेंड तक भी जाते हैं तो भी हमारा 12 पेजेस हो गया. ठीक है. सो ये बेसिक बेसिक फॉर्मेट यू कैन फॉलो. नेक्स्ट थिंग, लेट्स सी द बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट इज लाइक, अब बॉडी पार्ट के डिफरेंट कंपोनेंट हैं और डिफरेंट वेज हैं टू राइट अ बॉडी पार्ट. सो फर्स्ट इज टेम्पोरल. टेम्पोरल इन द सेंस की past, present and future. So we can start with past, then प्रेजेंट के बारे में हम बात कर सकते हैं, देन फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं. तो ये एक टेम्पोरल फॉर्म में हम बॉडी को लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ. डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से भी हम अपने पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं. लाइक इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल, प्रोफेशनल और वर्क प्लेस पे, सोसाइटी, कम्युनिटी, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है किसी भी चीज़ का जब भी हम आर्गूमेंट दे रहे हैं. तो इन डायरेक्शंस में हम सोच सकते हैं. ठीक है, जनरेट कर सकते हैं पॉइंट्स को. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन. प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन जैसे अब आपने किसी क्वेश्चन से स्टार्ट किया. लेट्स सी कि लेट्स सपोज कि आप अपने कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया है, देन उसका जो है बॉडी आप ऐसे दे सकते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड की. आप उस कॉन्सेप्ट को एलिबरेट करो, उसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखो, स्टेटस क्या है प्रेजेंट सोसाइटी में या अभी अभी मॉडर्न टाइम में उसका क्या इम्पैक्ट है. तो ये हम देख सकते हैं. देन इश्यूज उसमें क्या क्या आ रहे हैं, एंड देन सोल्यूशन, वे फॉरवर्ड और रोड अहेड हम लिख सकते हैं. देन मोस्ट applicable or the most trusted one is like most of the aspirant would follow this, like stakeholder approach. Stroke not this, like I would say कि this one is standard. like ये वाली अप्रोच बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, नॉट दिस बट यू कैन ऑल्सो फॉलो. लाइक सीनियर सिटीजन बेसिस पे स्टेक होल्डर कौन कौन से, बेसिकली आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो. ठीक है, तो उसमें आप देखो कि कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं. आप उन स्टेक होल्डर के अकॉर्डिंग आप अपने पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो. जैसे सम ऑफ दी स्टेक होल्डर आर हेयर दैट सीनियर सिटीजन, चिल्ड्रन, द अनबॉर्न, माइनॉरिटीज में एंड वल्नरेबल सेक्शंस में जैसे चिल्ड्रन, वेमेन, ट्राइबल कम्युनिटी एंड रूरल पुअर एटसेट्रा. सो you can generate points on these directions. Okay. Next is, this is one is the most trusted and most aspirant, like most of the people would follow this. इसमें क्या है, staple approach, which is I think you already know about this approach. Staple approach in the sense की social, temporal, economic, political, environmental and legal. यहाँ पे मैंने एक और जोड़ दिया हिस्टोरिकल. सो इस डायरेक्शन में आप पॉइंट जनरेट कर सकते हो. पहले हम हिस्टोरिकल सोच सकते हैं, सोशल सोच सकते हैं, टेम्पोरल सोच सकते हैं, इकोनॉमिक बेसिस पे हम सोच सकते हैं, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं, देन इन्वायरमेंट पे, देन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे हम सोच सकते हैं. और इसी को हम ऐसे स्पेशल वे भी बोलते हैं. कोई भी स्पेशल अप्रोच है, स्टेपल अप्रोच एक ही है. देन एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन पे हम सोच सकते हैं, साइंस एंड टेक वाले टॉपिक पे सोच सकते हैं, एंड ऑल्सो महाभारता, रामायणा और एनीथिंग लाइक रिलीजियस जो डॉक्यूमेंट्स हैं
बाइबल पे हम सोच सकते हैं, सो कुरान पे हम सोच सकते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जिसपे हम अपने पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। And also, sixth one is various sections, like sections in the sense सेम ही है, वो यहीं पे कवर हो जाता है, बट sections के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं तो मीडिया, जैसे मीडिया, साइंस एंड टेक, बिजनेसेस, स्पोर्ट, रिलीजन्स, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल एंड नेशनल एंड इन्वायरमेंटल लेवल पे हम सोच सकते हैं। एंड वन थिंग इज देयर जो मैं शायद भूल गई यहाँ पे लिखना, 7 नंबर पे हम देख सकते हैं 2.7 इज आर जीएस जीएस सिलेबस वाइज। व्हाट इट मीन्स इज कि GS1 में जैसे हमारा आप डिकोड करते जाओ सिलेबस को, हिस्ट्री है, फिर हमारा सोसाइटी है, फिर ज्योग्राफी है, फिर GS2 में अगर देखा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी हम बोल सकते हैं, गवर्नेंस है, जस्टिस है मतलब सोशल जस्टिस, एंड देन IR वाला हो गया। GS3 में अगर हम देखा जाए तो उसमें हमारा इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, देन साइंस है, देन इन्वायरमेंट है, देन डिजास्टर है, देन सिक्योरिटी है। एंड देन GS4 का हम देख सकते हैं तो उसमें हमारा आ जाएगा एथिक्स वाला पोर्शन आ जाएगा, मतलब ह्यूमन एंड एथिक्स, मोरालिटी, एंड मतलब इस वाले सेक्शन से भी हम एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो एक आइडिया, एक तरीका ये भी है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम देख सकते हैं कि कंक्लूजन में 3 आइडियाज है हमारे, कि पहला हम पोयम से किसी ऐसे को खत्म कर सकते हैं, इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद, सो हाँ, बिकॉज आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस, मुझे पोयम वगैरह इतना याद नहीं होती। लेट्स सी। नेक्स्ट, सम अप विद फ्यूचरिस्टिक विजन। ये दिस इज मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट फॉलोड, लाइक बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, आई एम वन ऑफ देम। एंड देन फिक्शनल कैरेक्टर्स, ये ऑल्सो मुझे नहीं आता, अगर आपको आता है तो यू कैन जस्ट फॉलो। एंड द कोट, कोट भी टू सम एक्सटेंट मेरे को आता है, बट बहुत कोट्स आर वेरी लिमिटेड, और बहुत एफर्ट्स लगता है इसको कोट्स को याद करने में, और उसको मतलब टू सम एक्सटेंट यू कैन फॉलो, यू कैन राइट, लाइक कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के आप कोट कलेक्ट कर सकते हो, जैसे MG, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, और नेल्सन मंडेला, विवेकानंदा, APJ अब्दुल कलाम। सो ऐसे कुछ कोट कलेक्ट कर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि एक चीज, जो एथिक्स का पेपर है, एथिक्स और ऐसे का जो PYQ है, यू कैन रेफर, वहां पे जो है एथिक्स की बात करा जाए तो एथिक्स में कोड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जो कभी कभी कोड इतनी कैची हो जाते हैं ना, उस कैची होते हैं, उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने ऐसे पेपर में। सो वी कैन जस्ट कलेक्ट फ्रॉम दीज PYQs, लाइक जैसे 2013 से आप देखो तो बहुत सारे आपको हर साल 3 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं एथिक्स में, जो कोड बेस्ड होते हैं। तो उसको 3 × 10 आपके पास 30 कोड्स हो गए, नॉट जस्ट 30 बट एटलीस्ट 15 कोड्स तो ऐसे मिल जाएंगे ना रेलिवेंट, जो इजी हो, इजी टू रिमेम्बर, जो आप, और ऐसे में भी आपको बहुत सारे कोड्स मिल जाएंगे। अगर 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 देखा जाए किसी कोड पे पूछा गया है, हर साल कोड ही लगभग पूछा जाए, फिलोसफिकल बेसिस इनका बढ़ रहा है, तो वहां से भी हम कलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे हम 20 to 30 कोड्स हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम बार बार रिवाइज कर सकते हो। एंड देन वन थिंग इज देयर दैट लर्न फ्रॉम एवरीवन बट फॉलो नो वन। आप सीखो सबसे, लाइक टॉपर्स कॉपीज हम पढ़ते हैं जो, सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम देम, बट इट डजंट मीन दैट कि हम अपना नेचुरल वे खो दें। सो बी नेचुरल, जो जो आपको नेचुरली सूट करता है उसको आप फॉलो करो। नेक्स्ट एक्स्ट्रा थिंग इज देयर, लाइक कि ऐसे की प्रिपरेशन में थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक विमेन की थीम, एजुकेशन, पॉवर्टी, डेमोक्रेसी, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, इन डायरेक्शंस में आप डेटा, फैक्ट, एनेक्डोट कलेक्ट कर सकते हो ना। एंड कहाँ से, न्यूज़पेपर से, टॉपर्स कॉपीज से। सो ये चीज़ हम कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए भी मैं बताऊँ तो आप सर्च कर लेना अनुदीप दुरसेठी का, अनुदीप दुरसेठी सर का ब्लॉग है, उस पे ना आपको ऐसे आई थिंक 30 to 35 थीम मिल जाएंगी, थीम मिल जाएंगे, जिसको आप नोट डाउन कर लो, और उस पे अपने जो डेटा, फैक्ट, कोट्स और स्टोरीज, एनेक्डोट, वो आप कलेक्ट करते जाओ। देन कनेक्टर्स भी आप सर्च करना, सर के ही ब्लॉग पे आपको मिल जाएगा कुछ कनेक्टर्स, जैसे सिमिलरली, एज वेल एज, फर्दरमोर, फर्स्टली, इसको भी आप कलेक्ट करके नोट डाउन कर सकते हो एक सेपरेट नोटबुक बना के। सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया दैट वी कैन फॉलो फॉर ऐसे पेपर। एंड इसके बाद जो है हम ऐसे पेपर की फर्स्ट कॉपी पढ़ेंगे। एंड
उसमें भी पहली कॉपी हमारी होगी अनुदीप दुसेट्टी सर की कॉपी, विच इज लाइक माय फेवरेट कॉपी। मैं आई ऑलवेज रीड हिज कॉपीज बिफोर राइटिंग एनी ऐसे। सो इस कॉपी को हम पढ़ेंगे एंड इससे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। सो दिस इज सेट फॉर टुडेस गाइस। सो सी यू सून। थैंक यू।